Today we are going to learn break-even analysis. That is very important tool. That is also known as a decision-making tool. Today we are going to discuss this break-even analysis in a context of a capacity. Capacity mean the throughput or the number of units our facility can hold, receive, store, or produce in a specific time period. For example, if we take the example of any organization that is producing a cell phone, number of cell phone produced that organization in a specific time frame, maybe in a day, maybe in a week, maybe in a month, maybe in a year. That is known as a capacity of that organization. So we take another example. Let's say organization is producing AC. So number of AC produced that organization in a specific time period, in a 1 hour, in a 1 day, in a 1 week, in a 1 month, in a 1 year. That is known as the capacity of that organization. So there could be a long list of example of a capacity. Let's say we may take the example of a university, we may take the example of a school, we may take the example of a hospital. So number of beds of a hospital could be known as a capacity of that hospital. So right now we are going to discuss this break-even analysis in this context. So break-even analysis, as you may see on the screen, it is a technique for what, whether we have to purchase a new material, new equipment or not. For example, if the demand of specific product is continuously increases, the firm should increase its capacity. Let's say for example firms interested to buy a new machine, and what would be the cost of buying of a new machine, and what would be the possible revenue the firm is expected to get from that specific machine, uh, whether the revenue is equal to cost. So that point where the revenue is equal to total cost is known as a break-even analysis. So that is very important. And how can we, the answer of a break-even analysis could be in terms of a number of units, or it could be in terms of a currency. So, for example, in a context of a Pakistan, currency could be rupees. If we discuss in terms of a, let's say, international market, the currency could be a dollars. ये दोनों में अब ब्रेक इवन एनालिसिस बिजनेसमैन के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि after that point the revenue exactly equal to a cost of purchasing any new equipment, any new adding new facility. After that point, उस point के बाद क्या होगा, the profit of the organization will be started, और before that point का होगा उसको loss होगा. तो यहाँ पर क्या चीजें important है to find out break even analysis. We should have exact knowledge of what is a fixed cost, as you may see on the screen, and what is the variable cost of producing a specific output, and what is the revenue selling price of a specific product उस context के अंदर. अब मूव करते जी नेक्स्ट स्लाइड का. व्हाट डज मीन फिक्स कॉस्ट. तो फिक्स कॉस्ट डियर व्यूज क्या चीज होती है, दैट रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स. लेट्स से आप 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करें या 20 प्रोड्यूस करें या 40 यूनिट्स प्रोड्यूस करें, इफ देयर इज नो चेंज, सो दैट कॉस्ट इज नोन एज ए फिक्स कॉस्ट. अब इसकी पॉसिबल एग्जांपल क्या हो सकती है. फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं जो रेंट है उस फैसिलिटी का, उस मशीन का जिसको हम यूज कर रहे हैं फॉर प्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक प्रोडक्ट या आउटपुट, वो चीज़ें हो सकती हैं. एम्प्लॉयज़ की सैलरीज भी हो सकती है, टैक्सेस भी हो सकते हैं, डेट भी हो सकता है, डेप्रिसिएशन भी हो सकती है. क्योंकि आपको पता है कि हर चीज़ बाय द पैसेज ऑफ टाइम डेप्रिशिएट होती है. वो फैसिलिटी भी हो सकती है, वो कोई मशीन भी हो सकती है. द नेक्स्ट कॉस्ट दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इज नोन एज ए वेरिएबल कॉस्ट. तो वेरिएबल कॉस्ट वो इंक्रीज होती है एज वी इंक्रीजेस द आउटपुट, और इसी तरह वो डिक्रीज होती है अगर नंबर ऑफ यूनिट्स हम जो आउटपुट को वो डिक्रीज करते जाते हैं. अब इसकी पॉसिबल एग्जांपल क्या हो सकती है वेरिएबल कॉस्ट की. तो हेयर इज द लिस्ट. वो लेबर भी हो सकती है, वो मटेरियल्स भी हो सकती है, वो यूटिलिटीज की कॉस्ट भी हो सकती है, और डिफरेंट एग्जांपल हो सकती हैं जो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट की है.
ये होगी, देर आर टू काइंड ऑफ अ कॉस्ट. फर्स्ट वन इज अ फिक्स कॉस्ट दैट रिमेन्स कांस्टेंट irrespective of what we are producing and how many we are producing. The next one is a variable cost, per unit जो cost आती है हमारी. Next, that is very important to find out the break-even analysis revenue, the price of a product per unit price. तो that is also very very important. तो हमने revenue find करना, तो revenue का formula क्या होता है, price into units. Let's say P is the price of any unit, X is the number of unit. अगर हम price को X से multiply करेंगे तो we can easily find the revenue. तो revenue हमारे पास क्या हो गया, price into number of unit produced and sold by any organization. उसके बाद नेक्स्ट होता है, लेट्स से अगर हम ग्राफ ड्रा करें और हम एज्यूम कर रहे हैं द ग्राफ ऑफ टोटल कॉस्ट एंड द ग्राफ ऑफ टोटल रेवेन्यू बोथ आर लीनियर, ये फंक्शन है, और दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, जैसे अभी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, द ग्राफ ऑफ अ रेवेन्यू ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम अ ओरिजिन. अच्छा, व्हाई द ग्राफ ऑफ रेवेन्यू ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम अ ओरिजिन? आंसर इज, अगर हम कोई यूनिट ना प्रोड्यूस करते हैं ना सेल करते हैं तो उसकी हमें बेनिफिट क्या होगा, जीरो. सो दिस इज द रीजन द रेवेन्यू ग्राफ ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ये राइट है. उसके बाद है जी ग्राफ ऑफ, जो ब्लू कलर की लाइन आपको नजर आ रही है, तो ये जो ग्राफ है ये हमेशा स्टार्ट होगा above the origin along any point on the y-axis. Right now it starts from 200. That is known as a fixed cost, जो इंडिपेंडेंट है. तो यहाँ दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये डेट पॉइंट इज नोन एज ए ब्रेक इवन पॉइंट, वेयर द टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट, मीन नो लॉस नो प्रॉफिट. ये जो वो पॉइंट होते हैं इसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट. ये जो ब्लू कलर है और रेड लाइन है का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दैट इज नोन एज अ ब्रेक इवन पॉइंट. अब हमारे पास कुछ अजम्पशन होती हैं व्हेनेवर वी आर गोइंग टू फाइंड दिस ब्रेक इवन एनालिसिस. अजम्पशन क्या है, कॉस्ट और रेवेन्यू ये दोनों लीनियर फंक्शन है, क्योंकि इनका पीछे आपने स्लाइड में देखा है, इनका जो ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन है. अच्छा, जनरली जरूरी नहीं है कि बिजनेस के अंदर ऐसा ही हो कि बोथ आर लीनियर फंक्शन, ये अजम्पशन है यहाँ. और दूसरा होता है कि वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट है, समटाइम्स इट कुड बी डिफिकल्ट टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन अगर हमारे पास एग्जैक्ट आइडिया नहीं होगा इट वुड बी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट अ ब्रेक इवन पॉइंट. तो ये वो टाइम है. फिर बाय द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता है कि चीज़ों में उसकी प्राइसेस इंक्रीज होती है ड्यू टू सम इन्फ्लेशन, जैसे डिफरेंट एग्जांपल है उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर. तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ही हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं इन टर्म ऑफ यूनिट्स, जो अब अभी आपके पास है जो सबस्क्रिप्ट एक्स आपको नजर आ रहा है हेयर, ये वाला, ये हम ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करेंगे इन टर्म ऑफ यूनिट्स. दूसरा हम ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करेंगे इन टर्म ऑफ डॉलर्स और करेंसी. और यहाँ डिफरेंट वेरिएबल्स है, पी है प्राइस पर यूनिट है, और एक्स नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पर टी आर है टोटल रेवेन्यू, that is equal to P into X. P है प्राइस पर यूनिट, X a number of unit sold by any organization. F यहाँ पर फिक्स कॉस्ट है, V यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट है. तो TC का फार्मूला इन टोटल कॉस्ट फार्मूला is equal to F फिक्स कॉस्ट, V into X वेरिएबल कॉस्ट into नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन. ये उसका हमारे पास फार्मूला आ जाता है. अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, जब हमने ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है तो हम इक्वेट करेंगे टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, और रेवेन्यू हमारे पास पी एक्स है, ये एफ प्लस वी एक्स है. तो अगर हम इस तरह फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला आ जाता है, एफ इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय पी माइनस वी. तो ब्रेक इवन क्वांटिटी हमारे पास एफ हमारे पास फिक्स कॉस्ट है और पी माइनस वी. तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला हमने ब्रेक इवन पॉइंट किया. और अगर इन टर्म ऑफ हम डॉलर फाइंड करना चाह रहे हैं, इसी फॉर्मूले में थोड़ी सी चेंज होगी, एफ को डिवाइड करेंगे वन माइनस वी ओवर पी. वंस अगेन एफ आपके पास फिक्स कॉस्ट है और वी आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है, यहाँ पर प्राइस पर यूनिट है. सो देयर आर टू फार्मूलाज. One formula we may use for finding break-even point in term of a number of units. दूसरा हम करेंगे in term of a डॉलर्स और करेंसी के फॉर्म के. So this is the overview था कि break-even analysis. Dear viewers, that is very very important. It is one of the tool for making a decisions कि whether we have to purchase any new equipment or machine. तो ये एनालिसिस करते हैं
कि आफ्टर दैट पॉइंट जो भी हमारा नंबर आएगा ब्रेक इवन, उसके बाद प्रॉफिट होगा, उससे पहले लॉस होगा, और यहाँ पर नो लॉस नो प्रॉफिट। डियर व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया जाएगा, और आपके जो भी फीडबैक है मैं उसको वेलकम करता हूँ। कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।